Hello students, welcome to all of you in the knowledge. This is basically quiz session number 6. Till now we have today 5. Till now we have discussed 5 quizzes. This is session number 6 and today we will discuss also 10 questions, and side by side we will also uploaded many banking professional videos on the Knowledge YouTube channel. So I request to all of you, please watch these videos. And now let's start our session. And very important announcement, students who are preparing for RRB scale 2 scale 3, then you can visit Knowledgeist application or website for live or all recorded session and for test series and lot more. Clear? Knowledgeist will provide you one special offer, 10% off. Basically you can use coupon code new10 for this. Is a basically special 50-day session, and basically your exam will be conducted on 25th September 2021. So for upcoming exam you can basically get your knowledge, or basically how you can crack your exam. You can visit Knowledgeist app or website. So now let's start our discussion. The first question on your screens now. The Reserve Bank of India would conduct first ever open market operation for state development loans for what amount? देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाए जाते हैं. बेसिकली ये इसके किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है. ओएमओ के नाम से जाना जाता है. ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है और ये ओएमओ के नाम से जाना जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहला फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके लिए कंडक्ट करा गया था? फॉर स्टेट डेवलपमेंट लोन. स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, लोन्स के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए. कितनी अमाउंट तक का था वो? आपका 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़. So please tell what is the correct answer of this question. So now we will move to, it is basically 10,000 crore. Clear? So the central bank, basically Reserve Bank of India, is set to conduct its first ever open market operation for purchase of state development loans अमाउंटिंग ₹10,000 करोड़. क्लियर? देखो सबसे पहला जो इन्होंने फर्स्ट एवर ओपन मार्केट ऑपरेशन करा था किसके लिए? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए, और वो आपका 10,000 तक के लिए करा था. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया साइंड एग्रीमेंट. देखो इंडिया ने एक एमओयू साइन करा है, एग्रीमेंट साइन करा. कितना? $500 मिलियन का. इंडिया साइन $500 मिलियन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन. देखो उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ ये टाई अप करा? किसके लिए? फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांस सिस्टम प्रोजेक्ट. देखो बेसिकली वो क्या बनाना चाहते हैं? उधर की साइड एक मेट्रो बनाना चाहते हैं. दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट. तो उन्होंने किसके साथ ये एग्रीमेंट टाई अप करा है? इंडिया ने. आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन आ रहे हैं. एडीबी बेसिकली स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एनडीबी and IMF. So please tell what is the correct answer of this question. ADB, IIB, AIIB, NDB, IMF. So please tell what is the correct answer of this question. India signed of $500 million agreement with which institution for Delhi, Ghaziabad, Meerut regional rapid transit system project? The answer is NDB. Clear? Option number C. So Union Minister of Housing and Urban Affairs, National Capital Region, NCT, NCR, Transport Corporation Limited, and New Development Bank. NDB stands for New Development Bank, and IMF, International Monetary Fund. Clear? And the New Development Bank signed a loan agreement for lending $500 million for the Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit System project. This rapid transit system will provide a fast, safe, and comfortable public ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द नेशनल कैपिटल रीजन. क्लियर? बेसिकली काफी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा इशू आ रहा है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू कर रही है ताकि जो लोगों को आने जाने में मुश्किल ना आए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन ना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज डिजीबॉक्स? डिजीबॉक्स क्या है? दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सीईओ ऑफ नीति आयोग. क्लियर? देखो डिजी बॉक्स क्या है जिसको रिसेंटली लॉन्च करा गया, किसके द्वारा? सीईओ ऑफ नीति आयोग. देखो डिजी बॉक्स क्या, आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन आ जाते हैं. एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, प्रीमियम बैंकिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, आधार डेटाबेस. सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज डिजी बॉक्स दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सीईओ ऑफ नीति आयोग? Asset management platform, foreign exchange management platform, premium banking service platform, Aadhaar database. So please tell what is the correct answer.
So the correct answer of this question is AMF, Asset Management Platform. Clear? The CEO, option number A is the correct answer. The CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant, has virtually launched India's first digital asset management platform, DigiBox. So it is a digital file storage, sharing and management software as a service. इसको किस नाम से जाना जाता है? SaaS. Basically, it is a digital file storage, sharing and management software as a service, known as SaaS. SaaS product. He also became the first user of the platform. देखो सबसे पहले यूजर भी बने कौन? नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी, which provide a secure way to store all files in one centralized location. Clear? एक ही जगह पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करे जाते हैं? सेव करे जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं. So now next move to the next question. So what is the expansion of OPC which is seen in the Union Budget 2021-2022? देखो यूनियन बजट में एक टर्म यूज करी गई है OPC. इसका क्या मतलब होता है जो पहली बार यूज करी गई है यहाँ पर? ओवर द पोर्ट काउंटर, वन पर्सन कंपनी, ऑन पोर्ट कंपनी, ऑन द गो प्राइवेट कंपनी. सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जो आपका ओपीसी है, ओपीसी बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है ओपीसी, एज जो आपका बजट में यूज करा गया. क्लियर? सो एज पर द यूनियन बजट 2020-2021 द गवर्नमेंट वुड बी इंसेंटिवाइजिंग the incorporation of one person companies in order to boost the ease of doing business. देखो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि वन पर्सन कंपनीज आप बनाओ, इस्टेब्लिश करो, ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आपका ज्यादा बेटर रहे. So the government has reduced the time limit for Indian citizen to start an OPC from 182 days to 120 days. So this moves allows NRIs to incorporate OPCs in India. देखो जो पहले NRIs इंडिया में आकर रहते थे उनको एटलीस्ट 182 डेज के बाद ही ये कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी. अब वो जो टाइम उन्होंने 182 डेज से कम करके इसको कितना कर दिया? 120 दिन कर दिया. क्लियर? तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. So now move to the next question. Question number 5. SEBI has banned the chairperson and promoter of which company from the security market? SEBI के द्वारा कौन सी कंपनी के चेयरपर्सन और उसके प्रमोटर्स को बैन करा गया? किससे? फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट. आप लोगों के लिए चार ऑप्शन आते हैं स्क्रीन के ऊपर. रिलायंस, फ्यूचर रिटेल, DHFL, लक्ष्मी विलास बैंक. सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर. वी हैव फोर ऑप्शंस: Reliance, Future Retail, DHFL and Lakshmi Vilas Bank. So the correct answer of this question is option number B, Future Retail. So SEBI has banned the Future Retail's chairman Kishore Biani and other promoters from the securities market for 1 year. They have been charged for indulging in insider trading in the shares of the company. Clear? देखो इनके ऊपर केस कौन सा लगा हुआ कि इन्होंने insider ट्रेडिंग करी है, मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी बाहर के पर्सन को दे दी कि वो शेयर्स वगैरह खरीद कर बेनिफिट कर पाए. So SEBI has also imposed a fine of ₹1 crore each on the promoters and order them to pay back ₹17.78 crore with interest. देखो उन्होंने जितने भी इसके प्रमोटर्स थे उनके ऊपर 1 करोड़ ईच का फाइन करा, हर एक के ऊपर 1-1 करोड़ का फाइन करा और उनको बोला कि आप लोगों ने अमाउंट कितनी वापस करनी? 17.78 करोड़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. क्लियर? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर फ्यूचर रिटेल. So now move to the next question. Question number 6. What is the theme of Financial Literacy Week 2021? Very very important कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है? बेसिकली आरबीआई के द्वारा करा गया. और इस साल कब करा गया था? ये आपका फरवरी के मंथ में करा गया था. तो इसका थीम क्या होता है? देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है. अगर आपका एग्जाम जैसे कि 3 या 4 महीने से पहले तो नहीं, ये बाद में आता है. जैसे कि जनवरी में हुआ तो अभी आपका एग्जाम है, जैसे कि अभी आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में आने वाला है, तो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. तो सबसे पहले उसका थीम क्या था? सेफ इंटरनेट बैंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी अमिड अ पेंडेमिक और क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेसिकली क्रेडिट डिसिप्लिन and credit from formal institution. Clear? So Reserve Bank of India leads the observance of the financial literacy week since 2016. 2016 से उन्होंने ये वीक स्टार्ट करा था to create awareness about financial education. So this year it is being observed from February 8 to 12 2021, which is with the theme of, क्या थीम रखा उन्होंने? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. क्लियर? ये उन्होंने इस साल का थीम रखा था. देखो आपको कब
शुरू हुआ 2016 में। इस साल कब हुआ? 8 से 12 फरवरी के बीच में। और इसका थीम क्या रखा गया? फाइनेंशियल लिटरेसी, सॉरी थीम क्या था? क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which body recommends the selection of heads of public sector banks and financial institutions? क्लियर? इनमें से कौन सी बॉडी है जो बेसिकली रिकमेंड कर दे किसकी सिलेक्शन? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स की। तो आपके पास चार ऑप्शन है, डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक अफेयर्स सॉरी, बैंक बोर्ड ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्लियर? सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आपके किसके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं? बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। क्लियर? सो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम 1st of April 2016 recommends selection of heads of public sector banks and financial institution। देखो रिसेंटली देखो 14 GM and chief general managers have been appointed as executive directors in 10 public sector banks। देखो रिसेंटली 14 GM एंड CGM को अपॉइंट करा गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हैड रिकमेंड नेम्स ऑफ 13 कैंडिडेट्स इन सितंबर लास्ट ईयर। देखो जितने भी आपके हेड्स जो ईडी या एमडीज वगैरह बनते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, किसके द्वारा बेसिकली रिकमेंड करे जाते हैं? आपके बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा रिकमेंड करे जाते हैं। बेसिकली आपके जीएम या सीजीएम होते हैं आपके बैंक्स के, उन्हीं को ही प्रमोट करके आपका एमडी या ईडी बना दिया जाता है। Clear? Now move to the next question, question number 8. So who is the head of the technical group on social stock exchange set up by SEBI? Clear? देखो इनमें से कौन है टेक्निकल ग्रुप का हेड जो बेसिकली सेटअप करी गई ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप बाय सेबी? हर्ष भनवाला, एस जानकीरमन, उषा थ्रॉट, इंजति श्रीनिवास। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष भनवाला। क्लियर? सो टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी was constituted by SEBI under the chairmanship of Harsh Banwala, former chairman of NABARD, in the month of September। Clear? Basically इनको कब करा गया? सितंबर के महीने में लगाया गया। ये फॉर्मर चेयरमैन है किसके? नबार्ड के चेयरमैन है। क्लियर? सो वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बेसिकली हु इज द प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ नबार्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हर्ष भनवाला। क्लियर? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, कुछ थोड़ा सा पुराने बट ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आपके अगर 6-7 महीने क्वेश्चन पुराना भी है तो बैंकिंग अवेयरनेस में आप मानकर चलोगे आपसे 2 से 3 साल तक का प्रीवियस 2 to 3 ईयर का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। क्लियर? उनके लिए ऐसा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के रिस्पेक्ट तो अगर कोई नई चीज भी आ रही है तो उसका पुरानी के साथ कुछ ना कुछ लिंक रहेगा ही रहेगा। क्लियर? उसको बेस मानकर ही वो कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है has proposed to establish a gold exchange wherein gold would be traded in the form of electronic gold receipts? देखो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रपोज करा है टू स्टैब्लिश अ गोल्ड एक्सचेंज, कि हमने एक गोल्ड एक्सचेंज को स्टैब्लिश करना वेयर इन गोल्ड वुड बी ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, कि जहां पर जो आपका गोल्ड है वो कहां कैसे ट्रेड होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स की फॉर्म में वो आपका ट्रेड होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन आती है, आरबीआई, सेबी, एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स। एमसीएक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। So please tell which organization has proposed to establish a gold exchange wherein gold would be traded in the form of electronic gold receipts, जहां पर जो आपका गोल्ड है वो किस फॉर्म में ट्रेड करा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स की फॉर्म में वो आपका ट्रेड करा जाएगा। सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज प्रपोज्ड सेटिंग अप ऑफ अ गोल्ड एक्सचेंज। क्लियर? किसने बेसिकली प्रपोज करा गोल्ड एक्सचेंज के लिए? सेबी ने प्रपोज करा है। क्लियर? सेबी हैज प्रपोज्ड सेटिंग अप ऑफ अ गोल्ड एक्सचेंज। सो अंडर द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क gold would be traded in the form of electronic gold receipts and would have a domestic spot price discovery mechanism which is transparent। Clear? देखो सेबी ने ये प्रपोज करा आपका गोल्ड जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स की फॉर्म में क्या करा जाए? ट्रेड करा जाए, और जो उसकी प्राइस होगी वो डोमेस्टिक स्पॉट प्राइस, जो प्रेजेंटली उसकी प्राइस होगी उसी को वो रखा जाएगा। स्पॉट प्राइस बेसिकली मतलब जो प्रेजेंटली उसकी प्राइस है, एंड विच इज ट्रांसपेरेंट, सभी को पता होगा कि इसकी प्राइस क्या रखी गई है। क्लियर? ऐसा लोगों के साथ इसमें कोई भी धोखा नहीं होगा।
समझ आ रहा है, क्योंकि सारी सिक्योरिटीज आपकी सेबी के अंडर ही आते हैं, तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि ट्रांसपेरेंट रहे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, लोगों को सिस्टम में विश्वास रहे. Now move to the last question of our today's session, question number 10. Very important question. If the bank has to shift its branch in dash area, it is require RBI permission under section 23 of the Banking Regulation Act. Same district, same city, same town, same village. देखो RBI को कब परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी बैंक को कब परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो अपनी ब्रांच को शिफ्ट करना चाहते हैं, कहां पर, सेम डिस्ट्रिक्ट में, सेम सिटी में, सेम टाउन में, सेम विलेज में. किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई से. कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन. सो प्लीज टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच outside the same city, same town or same village does not require RBI permission. बट अगर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी. क्लियर. अगर सेम सिटी में या सेम टाउन में या सेम विलेज में वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको कोई भी परमिशन नहीं रहती. अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, एक क्लियर, तो उसको आरबीआई से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी. समझ आ रहा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. देखो उसी जगह पर अगर उन्होंने लोकेशन शिफ्ट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है. सेम टाउन में अगर लोकेशन ही शिफ्ट होगी तो भी, सेम विलेज में भी लोकेशन ही शिफ्ट होगी. देखो डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा एरिया आ जाता है. क्लियर. डिस्ट्रिक्ट में आपके बहुत ज्यादा सिटीज आ जाएंगे तो ये दिक्कत खड़ी कर देता. तो इसके लिए बेसिकली आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. क्लियर. सो यहाँ पर आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते तो प्लीज प्रेस like button and share the video with your friends and kindly subscribe Knowledgeist YouTube channel. And you can also join our Telegram group. All lecture updates, all study materials will be provided in this Telegram group, Knowledgeist. And if you are not able to find the Telegram group link, then you can comment in the comment section. Our technical team will provide you the link. And you can also visit our website knowledgeist.in for all study materials, for all courses provided by the Knowledgeist. So thanks to all of you for watching this video.